रानीगंज कोलफील्ड क्लब की तरफ से पिछले 11 सालों से टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस साल भी 12 साल के उपलक्ष्य पर डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन विगत रविवार रेलवे मैदान में किया गया। टूर्नामेंट का उद्घाटन रानीगंज रेलवे स्टेशन के मैनेजर मनोज सिंह अंडाल जीआरपी सुजन सिंह के हाथों फीता काटकर एवं झंडा फहराकर किया गया। कार्यक्रम में 93 नंबर वार्ड के पार्षद आलोक बोस, 91 नंबर वार्ड के पार्षद राजू सिंह, डॉक्टर दिवेंदु दास, एनके कालोटिया, डॉक्टर शुभहिंदु माझी उपस्थित थे। डे नाइट चले इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के 9 टीमों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश सहित कई जिलों की टीमों ने प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। सुबह 3:30 बजे तक चले वॉलीबॉल टूर्नामेंट प्रतियोगिता में उड़ीसा की टीम ने जीत अपने नाम कर ली। वहीं रनर अप टीम उत्तर प्रदेश रही। विजय टीम उड़ीसा को 50,000 चेक और ट्रॉफी इनाम के रूप में दिया गया। वहीं रनर अप टीम को 30,000 रुपए का नगद और ट्रॉफी दी गई। प्रतियोगिता में रानीगंज कोलफील्ड क्लब के अध्यक्ष विकास नंदी, सचिव पप्पू सिंह, कोषाध्यक्ष पप्पू देवघरिया, सदस्य नरेश सिंह, सुभाष गोराई आदि उपस्थित थे। রানীগঞ্জ কোলফিল্ড ক্লাবের উদ্যোগ এবছর কত বছর ভলিবল খেলা চলছে যদি জানান? রানীগঞ্জ কোলফিল্ড ক্লাব পরিচালনায় স্বর্গীয় রামেশ্বর সিং এবং জাতিসংঘের স্মৃতির উদ্দেশ্যে 12 আমাদের ডে নাইট ভলিবল টুর্নামেন্ট আমরা অনুষ্ঠিত করছি। এখানে আমাদের ভারতবর্ষের সব স্বনামধন্য দলগুলি অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা এবং বেঙ্গলের টিম বলতে কলকাতা শুধু আছে, কলকাতা বরিশাল। 8টা টিম নিয়ে আমাদের এবছর টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রায় भारतवर्ष स्वनामधन्य नेशनल प्लेयरরা सब हमारे टूर्नामेंट में अंशग्रहण। ये मैसेज यही है, सब मोबाइल में अभी एडिक्टेड हो गया है। अधिकतर खेल का मैदान एकदम फाका पड़ा हुआ है। तो हम लोग एक वॉलीबॉल एकेडमी भी हम लोग का चलता है। यंग जनरेशन के चाहते हैं जो वॉलीबॉल का अवेयरनेस के लिए वॉलीबॉल खेला और तरक्की करे, इसके लिए रानीगंज कोलफील्ड क्लब 12 साल से ये टूर्नामेंट हम लोग चला रहे हैं। কোচিং এর কোনো ব্যবস্থা বা কিছু এরকম লোকাল ছেলে মেয়েদের জন্য এরকম কিছু করেছেন ছেলেদের জন্য? লোকাল আমাদের প্রত্যেক দিনই আমাদের এখানে প্র্যাকটিস চলে এবং রবিবার এবং বৃহস্পতিবার দিন আমাদের কোচ মাধ্যমে তাদেরকে ট্রেনিং দেয়। কত মানে কদিনের খেলা হবে এটা? ডে নাইটের টুর্নামেন্ট একদিনে আছে। প্রাইজ কি আছে মানে উইনার্স রানার্স? ট্রফি ছাড়াও আমাদের উইনার টিমকে 50,000 টাকা এবং রানার্স টিমকে ট্রফি ছাড়াও 30,000 টাকা এবং ইন্ডিভিজুয়ালি প্রচুর প্রাইজ আছে। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ম্যান অফ দ্য সিরিজ এবং আমাদের নরেশদা এবং পপ্পুদা এদের উদ্যোগে আমাদের এই টুর্নামেন্ট এই বছর 12 বছর আমাদের অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আপনার নাম? শুভেন্দু দেগরিয়া, ক্লাবের কি পদে? ক্যাশিয়ার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। আমি তো আগেই বলেছি ওনাকে শুভেচ্ছা জানাই, স্বাগত জানাই। বলিউডে তার যে কন্ট্রিবিউশন তার জন্য তাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু আসানসোলে উনি কিছু করতে পারবেন না। উনি এসেই খামোশ বলছেন। আমরা এই খামোশ শুনেই বড় হয়েছি যদিও বা, কিন্তু আজকে সত্যি আজকে যে গণতন্ত্রকে পিষে দেওয়া হচ্ছে, যে ঘটনাটা বললাম, এবং আজকে পুরো ভোট বলুন, তার আগেও খুন খারাপি, মার্ডার, আমাদের কর্মীদের কৃষ্ণাদির হাত পা ভেঙে দিল কন্যাগরে, এবং আজকে দেখা যাচ্ছে রিজেন্ট পার্ক, তিলজলা, আজকে একটা বিভিন্ন জায়গা থেকে এই রাজ্যে অস্ত্র ঢুকছে, বোম ব্লাস্ট হচ্ছে, আর আমাদের এক মন্ত্রী বলছে যে এইসব ছোটোখাটো ঘটনাগুলো না হলে পুলিশ আর আদালত কি কাজ করবে। কি অদ্ভুত, মন্ত্রী সাপোর্ট করছে আর সেখানে আসানসোলের তৃণমূলের প্রার্থী এসে বলছে খামোশ তো করবেনি, কারণ তার নেত্রী যে তাকে টিকিট দিয়েছেন সে তো আমাদের চুপ করাতে চাইছে, বিরোধীদের কণ্ঠস্বরকে বাকরোধ করতে চাইছে, শেষ করে দিতে চাইছে। আজকে সেই ক্যান্ডিডেট এসে খামোশ বলছে। আপনি খামোশ বলতেই পারেন, কিন্তু আমাদের যে প্রতিবাদ, আমাদের যে কণ্ঠস্বর আপনি বুঝতে পারবেন না। গণতন্ত্র এখানে শেষ করে দিয়েছেন এই টিএমসি, আমরা সেটা হতে দেব না।
তৃণমূল কংগ্রেস বলছে কি এই যে নির্বাচনের ফলাফল আসেন তিনি বলছেন খেলা হবে, কি ধরনের খেলা হবে? দেখুন, ওনারা তো আজকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সাথে তো খেলা করেছে এবং এখনো অবধি খেলা করে যাচ্ছে। আজকে এখানে চাকরি বাকরি নেই, আপনার পরিবারেরও ছেলেমেয়েরা আছে তারা চাকরি নেই, আমার পরিবারের ছেলেমেয়েরা চাকরি নেই, আজকে কোনো স্বাস্থ্য পরিষেবা নেই, শিক্ষার অর্গানাইজেশন নেই, ডিএ দেওয়া হচ্ছে না, কিছুই তো হচ্ছে না। এটাই তো খেলা, মানুষের জীবন নিয়ে খেলা, মানুষের ক্যারিয়ার নিয়ে খেলা, ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা, এটাকেই তো খেলা বলে। আর আমি কি বলেছি, যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাবো, সে যে কেউ জিতুক, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হোক। আর যদি ভাবেন যে বাইরে থেকে ছেলে এনে ফায়ার আর্মস দিয়ে যেভাবে পুরসভার ভোট যে করিয়েছেন সেভাবে যদি করাবেন ভেবে থাকেন, তাহলে অবশ্যই মারের বদলা মারই হবে। কেন্দ্র বাহিনী এলে অবশ্যই একটা পিসফুল এনভায়রনমেন্ট থাকবে, সেখানে নিশ্চয়ই মারামারি করার দরকার পড়বে না। কেন্দ্র বাহিনী তো আর কেন্দ্র সরকারের হয়ে তাবেদারি করে না, আর রাজ্য সরকারের হয়ে অবশ্যই তাবেদারি করবে না। রাজ্য পুলিশ যে আছে সে তো টিএমসির ক্যাডার হয়ে কাজ করে, প্রবলেমটা তো সেখানেই। আজকে আমাদের রাজ্য পুলিশ যদি শিরদাঁড়াটাকে সোজা করে কাজ করতেন তাহলে তো এত কথা বলার দরকার হতো না, কেন্দ্র ফোর্সও লাগতো না। তারা কাজ করেনি বলেই আজকে সেন্ট্রাল ফোর্সের জন্য আমাদের প্লিড করতে হয়। এবং এই ধরনের হাওয়ায় ডায়লগ বলে, যেটা তারা তাদের নেত্রীর কাছ থেকে শিখেছে, হাওয়ায় ডায়লগ বলা, 1500 কেজির বাচ্চা, বিষ্ণু মাতা, এগুলো সব যে হাওয়ায় ডায়লগ উনি বলেন, তার কর্মীরা সেখান থেকেই শিখেছে। ডায়লগ মানুষ বলতেই পারে, এবং সেই কারণেই আজকে যত তারা বুঝতে পারছে যে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, মানুষ আসানসোলের মেয়েকে চায়। এটা আমি বারবারই বলেছি, আসানসোল নিজের মেয়েকে চায়, আসানসোল কোনো বহিরাগতকে চায় না। কারণ এক তো শত্রুঘ্ন সিনহার আসানসোলের সাথে কোনো সম্পর্কই নেই, মানুষজনকে জানে না, রাস্তাঘাট জানে না, কি ইস্যু কি প্রবলেম জানে না। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একজন বহিরাগত ক্যান্ডিডেটকে এখানে বসিয়ে দিয়েছে একটাই কারণ, যাতে 2024-এ উনি ওখানে গিয়ে লোকসভাতে গিয়ে যদি উনি একান্তই যদি যেতেন তাহলে ওখানে গিয়ে যাতে উনি চিৎকার চেঁচামেচিটা করতে পারেন, বিরোধীদের যে মমতা ব্যানার্জির টিম হিসেবে তিনি যেন ওখানে গিয়ে, যেটা উনি করে এসেছেন আর কি। উনি নিজের জায়গাতে ভোট পাননি। আজকে 2,60,000 ভোটে উনি পাটনা সাহেবে উনি হেরেছিলেন, নিজের বিহারের জায়গায়। উনি কি বলতে এসেছেন? তাহলে তো নরেন্দ্র মোদী তো বেনারস থেকে দাঁড়িয়েছে, যে কেউ যেখানে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু ইউপির যে মুখ্যমন্ত্রী সে কিন্তু কাউকে বহিরাগত বলেনি। ডিফারেন্সটা এখানেই, আমার মুখ্যমন্ত্রী বহিরাগত বলে, আমরা তার কাছ থেকেই শিখেছি। বাংলার বাইরে থেকে কেউ যদি বাংলাতে আসে তাকে বহিরাগত বলতে হয়। ইউপির যে মুখ্যমন্ত্রী সে কিন্তু কাউকে বহিরাগত বলেনি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেখানে যেতে পারেন, যে কোনো মানুষ যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারেন। আমাদের বক্তব্যটা হচ্ছে, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে এসেছেন এতদিন ধরে, বাইরে থেকে কেউ এলে তাকে বহিরাগত বলতে। তাহলে কেন বহিরাগত ক্যান্ডিডেট আমাদের দেওয়া হলো, কিসের জন্য? আপনি বলছেন কত ধানে কত চাল, মারের বদলা মার। গতকাল आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल प्रत्याशी अभिनेता सह नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को रोड शो करते हुए धूमधाम से अपना नामांकन दाखिल किया। सोमवार की सुबह गाजे बाजे के साथ तृणमूल के दिग्गज नेताओं के साथ पश्चिम बर्धमान जिला शासक कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके पहले रविवार की देर शाम से अंडाल हवाई अड्डे से आसनसोल तक ग्रैंड होटल पहुंचे। वहां तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उन्हें सम्मानित करने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। सोमवार की सुबह वह अपनी पत्नी के साथ आसनसोल बीएनआर स्थित रविंद्र भवन परिसर पहुंचे, जहां उन्हें राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, सांसद कल्याण बैनर्जी, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष विधान उपाध्याय, अड्डा के चेयरमैन तापस बैनर्जी, वी शिवदासन दासू समेत हजारों की तादाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे के साथ शत्रुघ्न सिन्हा का स्वागत किया। फिर यहां से रोड शो के रूप में रैली शुरू हुई। खुली गाड़ी में शत्रुघ्न सिन्हा तमाम स्थानीय नेताओं के साथ जिला शासक कार्यालय के लिए निकले।
शत्रुघ्न सिन्हा का दीदार करने के लिए सड़क के दोनों ओर लोग खड़े दिखे। जिला शासक कार्यालय पहुंचने के बाद कार्यालय से 100 मीटर दूरी पर उनके समर्थकों को रोक दिया गया। प्रत्याशी के साथ कुछ चंद लोग ही जिला शासक कार्यालय में गए। वहां कागजी औपचारिकता पूरी की गई, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के नामांकन पत्र में अधिकारियों ने कुछ त्रुटि पाई, जिसे ठीक की गई। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। यहाँ की जनता का समर्थन और प्यार देखकर हम लोग खुशी से झूम उठे हैं। Need help. Do you feel that you will get support from Asansol? Why not? What's the reason behind it? The reason behind it is of course हमारी दीदी का confidence हम में, उनका trust हम में, and the people of Asansol, and let me tell you, Mr. Sinha जो हैं वो all India politician है, नेशनल फिगर है। सही बोला आपने। तो एक नेशनल फिगर को आप बांध के रख नहीं सकते हैं। उनको जहाँ भी उनको इज्जत मिलेगी और उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, वो वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। आसनसोल जो के कि वोटर्स के लिए सिन्हा क्या से कहिएगा? जी, आसनसोल के वोटर्स के लिए क्या कहिएगा? वोटर्स के लिए तो हम देख रहे हैं कि वोटर्स में को हमारे लिए कितना प्यार है। जो आज लोग आए हैं इनके नॉमिनेशन पे और इतना उन्होंने सपोर्ट किया है और प्यार दिया है, तो हमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे वोटर्स जो हैं, बिकॉज अभी नॉमिनेट हो गए तो वो हमारे वोटर्स बन गए, है ना। Thank you very much. तो इसलिए थैंक यू। दूसरी ओर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से आज रोड शो के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं और जनता का समर्थन मिला, इससे हम यह अवश्य कह सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक क्षण था और ऐतिहासिक क्षण एक इतिहास में ही बदलेगा। एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। जिस दिन रिजल्ट निकलेगा यहाँ पे, वो हमारा रिजल्ट जो है ऐतिहासिक होगा और एक नया हिस्ट्री, एक नए इतिहास की रचना करेगा। सर, बंगाल में चुनावी मैदान में आप पहली बार लेकिन बंगाल में तो आप जानते हैं परेड ग्राउंड में भी ममता दीदी के समर्थन में, ममता जी के समर्थन में तो हम शुरू से साथ रहे हैं। ममता जी हमारी बहुत ही मनपसंद, बहुत ही चहेती और लीडर ऑफ द ट्रू सेंस है पूरे देश की। टाइग्रेस ऑफ बंगाल है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो है ग्रेट लीडर है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग है एंड ग्रेट वुमन। उनके लिए जितना भी जो कुछ किया है, कम किया है और आगे भी जो करेंगे ममता जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ बंगाल और आसनसोल या पूरे देश के लिए अद्भुत परिणाम लेके आए। सर, भाजपा में कह रहा है कि खामोश आपको 12 तारीख के बाद यहाँ से चल जाना पड़ेगा। जिन्होंने भी कहा है उनको मेरी शुभकामनाएं है और मैं शुभाशीष देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वहीं दूसरी ओर भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस की कड़ी व्यवस्था भी की गई थी। जुलूस के साथ पुलिस की कई गाड़ियां सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। रोड शो के साथ साथ जिला शासक कार्यालय पर भी रैफ के जवान के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। बीएनआर मोड़ से लेकर जिला शासक कार्यालय तक सभी मोड़ों पर पुलिस के जवान मौजूद रहे। की रचना कर सकेंगे, एक हिस्ट्री क्रिएट कर पाएंगे। इतने टाइम क्यों लगा नॉमिनेशन फाइल करने में? इतना देरी क्यों? वो तो हमारा टेक्निकली होता है, कोई फॉर्म में कोई साइन ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो छोटी बात है, कोई बात नहीं। लोग सारे सब कर रहे थे उसको, इसलिए हम तो आपके सामने आ गए थे। बहुत अच्छा रोड शो हुआ, लोगों ने बहुत साथ दिया, समर्थन दिया और यहाँ पे आके बैठ के वो बहुत टेक्निकल मामला था, वो ठीक हो गया। क्या क्या मुद्दे में आप चुनाव लड़ेंगे आसनसोल में? आपने अभी मुद्दे की बात की, जगजीत सिंह की गजल सुनी है ना आपने, आहिस्ता आहिस्ता। आज हमने फॉर्म साइन किया है, आज नॉमिनेशन साइन किया है। अभी अच्छा रिजल्ट निकलने दो, एक इतिहास की रचना होने दो। हमारे आसनसोल और हमारे बंगाल के तमाम लोग हैं, उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को अच्छे से समझते हुए जो इंसाफ के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ने की मेरी पुरानी फितरत रही है, पूरे देश में आपको याद होगा सबसे ज़्यादा नोटबंदी के खिलाफ हमने ही आवाज़ उठाई थी। कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी के खिलाफ भी हमने ही आवाज़ उठाई थी कि मेरा मानना रहा है शुरू से कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं। तो देश हित में जो होगा और यहाँ पे ममता जी का नेतृत्व होगा, हम अपनी आवाज़, विपक्ष की आवाज़ को मजबूत करेंगे, दबंग बनाएंगे और ममता जी के साथ मिलकर
बंगाल की समस्याओं को, देश की समस्याओं को और खासकर अपने आसनसोल की समस्याओं को से जूझने के लिए, लड़ने के लिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर हैं और आज से और तत्पर रहेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, Inspiring Better Health, 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
दुर्गापुर थाना अंतर्गत वारिया फाणी के कादा रोड यौन कर्मी बस्ती इलाके में फाणी के एक पुलिसकर्मी ने 2 यौन कर्मियों के साथ किसी विवाद को लेकर मारपीट की थी। पुलिस के मारपीट से 2 यौन कर्मी बुरी तरीके से घायल हुए थे। इस मामले में दोनों यौन कर्मियों ने दुर्गापुर महकमा शासक से लिखित शिकायत दर्ज करते हुए उक्त पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। घायल यौन कर्मी ने बताया कि शनिवार की रात इलाके में किसी बात को लेकर पारिवारिक विवाद हो रहा था। इसी बीच वारिया फाणी के एक पुलिसकर्मी मामले को ना समझकर हमारे ऊपर लाठी से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आए एक और यौन कर्मी को भी पीट डाला, साथ ही गाली गलौज भी की गई, जिसमें 8 साल का बच्चा भी घायल हो गया। हम लोग चाहते हैं कि उस पुलिसकर्मी के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। दुर्गापुर महकमा शासक शेखर कुमार चौधरी ने कहा कि विषय की जानकारी मिली है, पुलिस को मामले की जांच करने को कहा गया है। সোনালি নাম মেয়েটাকে রেখেছিল, তা ওর সাথে ঝামেলাটা হয়েছিল। তা ঝামেলাটা হওয়ার পর ও নার্গিসকে ওর ঘরের সবাই মেরে গেছে। এবার আমার দিদি ঠেকাতে গেছে, আমার দিদিকেও মেরেছে, আমি বলতে গেছি তো আমাকেও মেরেছে। দিদির নাম কি? আমার দিদির নাম সোমা। ঠিক আছে, মারার পর আর যে মেয়েটাকে মেরেছে তার নাম নার্গিস। মারার পর এইবারে যা ওর মেয়েদের মধ্যে হয়ে গেছে, উনি নূরবাবুকে রেখেছে। নূরবাবুকে ফোন করে নূরবাবুতে এসে জিজ্ঞেস করা উচিত কি হয়েছে না হয়েছে, তা জিজ্ঞেস না করে লাঠি চার্জ করতে লেগেছে। নূরবাবু কোথায় কে? নূরবাবু একটু পুলিশ, আমাদের থানার পুলিশ। কোন থানা? অরিয়া থানা। ওনার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে? হ্যাঁ, ওনার সাথে একটু রিলেশন আছে। কার? ওই সোনালি বলে মেয়েটা। তো তোমাদেরকে কালকে মারার পর তোমরা তো আজকে এসডিওর কাছে কমপ্লেইন করি, কি বললেন এসডিও? উনি বললো অ্যাকশন নিচ্ছি, আর আমরা জানিয়েছিলাম ওই যে দাদাকে। মারার পর তোমাদের কে কে অসুস্থ হয়েছে? মারার পর 2 জন হসপিটালে রয়েছে, আর এই যে আমার এই ছেলেকে মেরেছে, আমাকে মেরেছে, আর একটা বৌদি আছে, উনি আসতে পারে নাই। ঠিক আছে, আমাদের 5 জনকে মেরেছে, আর ওরা তো এখনো হসপিটালে রয়েছে। হ্যাঁ, নার্গিস আর সোমা আর আমাদের মেরেছে, আর এই যে আমার ছেলেটাকে মেরেছে, আর আমাকে মেরেছে, আর একটা বৌদি আমাদের এই পাড়াতেই আছে। মারার পর এমন করে যে একটা এরকম করেছে না, আগে হয় নাই। ঠিক আছে, তখন মানে এই জিনিসটা দাবি দেয়া এই তোমরা মহাকুমা শাসকের কাছে আমাদের অফিসে জানানো হয়েছিল, তখন কোনো কেউ এলে সবাই জানালে, তো জানিয়ে তোমরা স্যাটিসফাইড? আমরা কাউকে জানি, আমরা নিজের থেকে এসেছি, আমরা নিজেদের ইয়েতে আমরা আমাদের কি বললেন তোমার? উনি তো বললো যে তোমরা আমাদেরকে কোথায় যেতে বললো, হ্যাঁ ভিডিও ফুটেজ ওনার কাছে যেতে বললো। ওনার কাছে যেতে। কি নাম তোমার? কি নাম তোমার? আমার নাম টুকটুকি। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सातग्राम एरिया के नीमडांगा प्रोजेक्ट स्थित सातग्राम इंक्लाइन में कोलियरी से होकर बेनाली ग्राम जाने वाले सड़क के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों ने ईसीएल के सभी कामों को बंद करवाकर मैनेजर एजेंट का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। मौके पर श्रीपुर फाड़ी और एबीपी, टीसीएस, सीआईएसएफ पहुंचकर किसी तरह से मामले को शांत करवाया। प्रदर्शन के दौरान बेनाली ग्राम मस्जिद के इमाम हाजी वाइज उल हक ने कहा कि 1981 साल में जब कोलियरी का निर्माण हो रहा था, आज हम तमाम गांव वाले जो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं हालात इस तरह से, डिलीवरी पेशेंट, मरीज़, उसके अलावा स्कूल के बच्चे और ईसीएल का भी लोग आदमी आर पार होते हैं। हम लोगों ने ये नहीं 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं। आखिरकार इन लोगों ने कागज़ बनाया 22/2/2021। हेड क्वार्टर तक, पुलिस स्टेशन, जितने यूनियन है तमाम, आखिर में तमाम मजबूरन तमाम मिल करके हम लोग आंदोलन किया। फिर इन लोगों ने फेलियर किया, रीटेंडर ये वो क्या क्या मामले लोग समझे। उसके बाद फिर कागज़ बना 13/2/2021 को। फिर उसके बाद ये टेंडर पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज जो नया एजेंट आए हैं, इनका कहना है कि हमको टाइम दिया जाए, मेरा सामान रखा जाए। अब आप लोगों के सामने, सारे गांव वालों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इन लोगों ने जो टाइम लिया 7 दिन या 8 दिन का, अगर चालू नहीं करता तो हम लोग दोबारा फिर आंदोलन करेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े, लेकिन कोलियर बंद रखेंगे। बालू, हवा पंखा, तमाम के तमाम जितने भी है, बिजली सब बंद रखेंगे। इसके लिए जो भी करना पड़े, चूँकि हमारे
और किसी के घर का काम नहीं, ये बिल्कुल खिदमत खल्क है, जिसे सोशल वर्क कहा जाता है। आप तमाम लोग भी साथ दें और मैनेजमेंट से गुजारिश है सेल वालों से हम लोगों का साथ देकर रास्ते को बनाएं। जबकि हम लोगों के गांव के लोगों का हम लोगों का कोई डिमांड नहीं, ना रास्ता, ना ड्रेन, ना स्कूल, ना फुटबॉल, ना लाइब्रेरी, ना पानी, ना बिजली, कुछ गाँव वाले को है ही नहीं। जबकि जब कोलियरी पैदा हो रहा था, जिस टाइम बन रहा था 1981 में, एग्रीमेंट है यहाँ से लेकर मज़ार तक। स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारे सिर्फ एक ही मांग है कि किस कोलियरी से होकर बेनाली गांव को जाने वाले रास्ते का निर्माण ईसीएल की तरफ से किया जाए। कितना दिन आएगा? ठीक है ना? हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कोलियरी बंद रहेगा, काम चालू होगा, कोलियरी चालू होगा। ठीक है? काम चालू होगा, कोलियरी चालू होगा। ये हम लोगों का आपको रिक्वेस्ट था। ठीक है ना? वहीं इस विषय पर कोलियरी एजेंट विजय कुमार ने कहा कि स्थानीय लोगों के विचार कर 10 दिनों के अंदर काम आरंभ कर दिया जाएगा। आज हम तमाम गांव वाले जो ये रास्ता जो आप देख रहे हैं हालात इस तरह से, डिलीवरी पेशेंट, मरीज़, उसके अलावा स्कूल के बच्चे और ईसीएल का भी लोग आदमी आर पार होते हैं। हम लोगों ने ये नहीं 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं। आखिरकार इन लोगों ने कागज़ बनाया 22/2/2021। हेड क्वार्टर तक, पुलिस स्टेशन, जितने यूनियन है तमाम, आखिर में तमाम मजबूरन तमाम मिल करके हम लोग आंदोलन किया। फिर इन लोगों ने फेलियर किया, रीटेंडर ये वो क्या क्या मामले लोग समझे। उसके बाद फिर कागज़ बना 13/2/2021 को। फिर उसके बाद ये टेंडर पास हुआ, लेकिन उसके बावजूद आज जो नया एजेंट आए हैं, इनका कहना है कि हमको टाइम दिया जाए, मेरा सामान रखा जाए। अब आप लोगों के सामने, सारे गाँव वालों के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये इन लोगों ने जो टाइम लिया 7 दिन या 8 दिन का, अगर चालू नहीं करता तो हम लोग दोबारा फिर आंदोलन करेंगे, चाहे जितना दिन रहना पड़े। लेकिन कोलियरी बंद रखेंगे, बालू, हवा पंखा, तमाम के तमाम जितने भी है, बिजली सब बंद रखेंगे। उसके लिए जो भी करना पड़े, चूँकि हमारे और किसी के घर का काम नहीं, ये बिल्कुल खिदमत खल्क है, जिसे सोशल वर्क कहा जाता है। आप तमाम लोग भी साथ दें और मैनेजमेंट से गुजारिश है सेल वालों से हम लोगों का साथ देकर रास्ते को बनाएं। जबकि हम लोगों के गांव के लोगों का हम लोगों का कोई डिमांड नहीं, ना रास्ता, ना ड्रेन, ना स्कूल, ना फुटबॉल, ना लाइब्रेरी, ना पानी, ना बिजली, कुछ गांव वाले को है ही नहीं। जबकि जब कोलियरी पैदा हो रहा था, जिस टाइम बन रहा था 1981 में, एग्रीमेंट है यहाँ से लेकर मज़ार तक। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PB न्यूज़।